Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, I am Wajid Hussain, lecturer in Institute of Southern Punjab. Our subject is International Business Management. Dear student, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप कोविड-19 से बचाव की पूरी तदाबीर अख्तियार कर रहे होंगे, जो SOPs हैं उस पर अमल कर रहे होंगे। आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है, तो लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने SOP का ख्याल करना है। Today our topic is regional economic integration, and this is lecture 10. And what is economic integration? Economic integration is the agreement among countries in a geographical region to reduce and ultimately remove tariff and non-tariff barriers to free flow of goods and services and factors of production among each other. यानी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऐसा इंटीग्रेशन है जो जियोग्राफिकल मुल्कों के दरमियान होता है, जिससे टैरिफ कम होता है, टैरिफ के ड्यूटीज़ वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो लगती हैं वो कम होती हैं या वो रिमूव होती हैं, टैरिफ बैरियर्स ख़त्म होते हैं, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज का होता है, यानी गुड्स एंड सर्विस का फ्री फ्लो होता है। दिस इज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। And the economic integration is the unification of the economic policies between different states. यानी एक जैसी पॉलिसीज को डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान होना, इकोनॉमिक पॉलिसीज का डिफरेंट स्टेट के दरमियान होना थ्रू द पार्शियल या फुल एबोलिएशन ऑफ द टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ्स रिस्ट्रिक्शन, यानी तकरीबन तमाम टैरिफ ख़त्म हो जाना या कुछ पार्शियल तौर पे ख़त्म हो जाना इसमें शामिल है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैन रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रेड की कॉस्ट कम करता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज की अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करती है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। एंड इंक्रीज कंज्यूमर परचेजिंग पावर इन मेंबर्स नेशंस, और जो मुल्क इसमें शामिल हैं उसमें कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को इंक्रीज करता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इम्प्रूव होती हैं। और टैरिफ क्या है? टैरिफ ए टैक्स या ड्यूटी टू बी पेड ऑन द पार्टिकुलर क्लास ऑफ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे जो ड्यूटी पे होती है उसको हम उस क्लास को टैरिफ कहते हैं। एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पार्ट्स, parent country nation, host country nation, third country nation, benefit and cost of foreign direct investment, home country benefits, regional economic integration, level of economic integration, types of regional trade agreement, measure how much regionalism matter for trade concentration ratio. And the learning objective, students will be able to discuss and define foreign direct investment, benefit and cost of foreign direct investment, home country benefit, regional economic integration, level of economic integration, types of regional trade agreement, measuring how much regionalism matter for trade, and trade concentration ratio. And after studying this lecture, you will be able to know about the benefit and cost of foreign direct investment, home country benefits, regional economic integration, level of economic integration, types of regional trade agreement, measure how much regionalism matter for trade, and the trade concentration. These are the learning outcomes. And you know well, the foreign direct investment, the foreign direct investment is an investment in form of controlling ownership in a business in one country by an entity based in another country. यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कंट्रोल करती है ऑनरशिप को इन बिजनेस में एक कंट्री में जिसकी एंटिटी दूसरी कंट्री में होती है। दिस इज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एंड बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज is often shaped by a consideration of cost and benefit of foreign direct investment.
home parent country nation, a parent country nations PCN is a person working in country other than his country या origin, यानी एक जिस मुल्क का वो सिटीजनशिप है उसके पास, वो उस मुल्क में नहीं बल्कि किसी और कंट्री में वो वर्किंग कर रहा हो, काम कर रहा हो, जिसको होम या नेटिव कंट्री। यानी पेरेंट कंट्री नेशन वो होता है जो अपने मुल्क के अलावा, अपने होम के अलावा किसी दूसरे मुल्क में वर्किंग कर रहा हो, इसको कहते हैं जी पेरेंट कंट्री नेशन। इट इज नॉट होम कंट्री, इट इज पेरेंट कंट्री नेशंस। And the host country nation, a host country nation HCN is an employee of an organization who is citizen of country in which the foreign subsidiary is located। यानी अगर पाकिस्तान है, उसकी सब्सिडी किसी और मुल्क में है, फ़र्ज़ के दुबई में है या किसी और मुल्क में है, मलेशिया में है, तो वहाँ का जो सिटीजनशिप होगी जिसकी, वो होस्ट कंट्री नेशन कहलाएगा या होम कंट्री नेशनल कहलाएगा वो। And the third country nation. Third country national TCN describe an individual of other nationalities hired by the government या government sanction contractor। यानी जो दूसरी कंट्री से लोग अगर मंगवाए जाते हैं काम के लिए, गवर्नमेंट मंगाती है या गवर्नमेंट कंट्रैक्टर मंगाते हैं, हु प्रेजेंट नाइदर द कंट्रैक्टिंग गवर्नमेंट, जो हु रिप्रेजेंट, वो जो रिप्रेजेंट ना ही कंट्रैक्टिंग गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं होम कंट्री को, नॉर द होस्ट कंट्री, ना ही होस्ट कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं होस्ट कंट्री या एरिया ऑफ ऑपरेशन, तो उनको कहते हैं थर्ड कंट्री नेशंस। नाइदर कंट्रैक्टिंग गवर्नमेंट होम कंट्री नॉर होस्ट कंट्री या एरिया ऑफ द ऑपरेशन। बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट फॉर द होस्ट कंट्री। बेनिफिट एंड कॉस्ट, बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर होस्ट कंट्री। बेनिफिट क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है। बेनिफिट है इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है। इंप्रूव टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है। इंक्रीज फॉरेन रिजर्व, फॉरेन रिजर्व इंक्रीज होते हैं। इंप्रूव लेबर स्किल, लेबर स्किल इंप्रूव होती है। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है। अफेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट कंपटीशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट कंपटीशन पे इफेक्ट होता है इसका, अच्छा इफेक्ट होता है। और कॉस्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, दी एडवर्स इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। आफ्टर इनिशियल inflow of the capital, subsequent outflow of the capital form the earning of foreign direct investment, and the foreign direct may import input from abroad, and the national sovereignty and autonomy, key decision that affect host country's economic may be made by the foreign parent that has no real commitment to the host country, and the adverse effect on the competition. Multinational enterprise may have too much power and kill of competition and increase labor salary. And the benefit and cost of foreign direct investment. Benefit and cost of foreign direct investment for home country. The previous was the for host country and no the home country. Low labor benefit, low labor कम पड़ती है। Increase foreign reserve increase होते हैं। Effect on the capital account to home country, balance of payment from the inward flow of the foreign earning। यानी जो इनफ्लो होता है उसे फ्लो ऑफ द फॉरेन अर्निंग होती है। लर्न स्किल्स, मल्टीनेशनल एंटरप्राइज में लर्न स्किल्स फ्रॉम एक्सपोजर एक्सपीरियंस टू फॉरेन कंट्रीज। और एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इम्प्रूव इंटरमीडिएट गुड्स या इनपुट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इम्पोर्ट इंपोर्ट करती है इंटरमीडिएट गुड्स या इनपुट्स को फॉर प्रोडक्शन फ्रॉम द होम कंट्री से। क्रिएटिंग जॉब्स, जॉब क्रिएट होती है। एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट्स ड्यू टू आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बेहतर होती है फॉरेन आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से। एंड द लर्निंग न्यू ट्रेंड, और नए ट्रेंड्स लर्निंग को मिलते हैं। एंड कॉस्ट, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी and resources transfer and balance of payment and the employment effect. And others know the introduction of regional economic integration,
refer to the agreement between countries to geographical region to reduce tariff and non-tariff barriers to free flow of goods and services. यानी इसका रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि दो कंट्रीज के दरमियान जोग्राफिकली रीजन को के दरमियान टू रिड्यूस टैरिफ को रिड्यूस करती है एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ जो बैरियर्स है उनको फ्री फ्लो ऑफ उनको रिड्यूस करती है और फ्री फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज का होता है एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन ईच अदर and the regional trade agreement are designed to promote free trade. रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट जब होता है तो इसका मतलब है कि वो फ्री ट्रेड होगी तो वो प्रमोट करता है फ्री ट्रेड को बट इंस्टेड the world may be moving towards a situation in which numbers of regional trade blocks compete against each other. लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्ल्ड में बी मूविंग वर्ल्ड मूव कर रही है टुवर्ड्स की तरफ सिचुएशन की तरफ इन विच नंबर ऑफ रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स बनने हुए compete against each other जो एक दूसरे को compete करने की कोशिश करते हैं. Level of economic integration. There are 5 levels of economic integration. There are 5 levels of economic integration. Free trade area eliminate all barriers. कि तमाम barriers को ख़त्म करता है free trade area. To the trade of goods and services, goods और service की trade के लिए among members countries, जो members होते हैं countries के उनके दरमियान, but members determine their own trade policies for non-members. लेकिन जो members होते हैं वो अपनी policies determine करते हैं कि उनके लिए जो non-members होते हैं उनके लिए. The European Free Trade Association EFTA between European Free Trade Association है between Norway, Iceland, Liechtenstein and Switzerland, and the North America Free Trade Agreement NAFTA, NAFTA, North American Free Trade Agreement between US, United States, Canada and Mexico are both free trade areas. Free trade area इनके दरमियान है. इंटीग्रेशन डिफरेंट कंट्रीज की हैं. 5 टाइप्स की इंटीग्रेशन है, इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन है. तो ये फर्स्ट इंटीग्रेशन है. द सेकंड इज customs union. Custom unions eliminate trade barriers between members countries and adopts a common external trade policy. तो एलिमिनेट करता है ट्रेड बैरियर्स को. जो कस्टम यूनियंस हैं वो एलिमिनेट करते हैं ट्रेड बैरियर्स को बिटवीन जो मेंबर्स हैं इन मुल्कों के एंड अडॉप्ट करते हैं एक कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी. एक कॉमन पॉलिसी इन दो मुल्कों की होती है उसको अडॉप्ट करते हैं. द Andean Pact between Bolivia, Colombia, Ecuador and Peru. ये कंट्रीज हैं, इनके दरमियान जो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है. एंड द थर्ड इज द कॉमन मार्केट हैज़ नो बैरियर टू ट्रेड बिटवीन मेंबर्स कंट्रीज. इनमें कोई बैरियर नहीं है ट्रेड के लिए इन जो मुल्क के मेंबर्स हैं उनके दरमियान. एक कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी और एक कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी है सबकी. एंड द फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की फ्री मूवमेंट है. मार्कोसर ये है जी बिटवीन ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड द उरुग्वे is aiming for the common market status. ये common market status है, ये मुल्क है इनमें. And the fourth is economic union. And economic union has free flow of product and the factors of production between members. फ्री फ्लो ऑफ प्रोडक्ट है एंड द फैक्टर्स हैं ऑफ प्रोडक्शन के बिटवीन मेंबर्स के दरमियान. एक कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी है, एक कॉमन करेंसी है, ए हार्मोनाइज्ड टैक्स रेट्स हैं एंड ए कॉमन मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी है. द यूरोपियन यूनियन EU इज एन इम्परफेक्ट इकोनॉमिक यूनियन. यूरोपियन यूनियन EU इज एन इम्परफेक्ट इकोनॉमिक यूनियन है.
अच्छा, इसकी एग्जांपल है, and a political union, and the fifth integration, economic integration, is a political union. Political union involves a central political apparatus that coordinate the economic, social and foreign policy of member states, जो कि डील करते हैं, कोऑर्डिनेशन है जिनकी इकोनॉमिक, सोशल और फॉरेन पॉलिसी ऑफ द मेंबर स्टेट्स की, जो इनके मेंबर्स हैं. And the European Union is headed toward at least partial political union, जो headed करते हैं partial political union को. And the United States is an example of even closer political union, और जो यूनाइटेड यूएस है ऐसी एग्जांपल ऑफ इवन क्लोजर पॉलिटिकल यूनियन की. लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. This figure shows the EU, European Union 2003, Politis Union, and the Economic Union, and the Common Market, and the Cruiser Union, and the Free Trade Area, and the level of integration, and NAFTA, North America, North Africa, Foreign Trade Agreement. And the types of regional trade agreement to refresh: preferential trade agreement, free trade area, customs union, common market, and economic union. These are 5 types of regional trade agreement. The preferential trade agreement, a trading agreement in which a national grant partial trade preferences to one or more trading partners. ये ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें नेशनल ग्रांट पार्शियल ट्रेड प्रेफरेंसेस होती हैं टू वन या मोर ट्रेडिंग पार्टनर के दरमियान. एंड द फ्री ट्रेड एरिया, ए ट्रेडिंग एग्रीमेंट दैट रिमूव ऑल बैरियर्स टू ट्रेड अमोंग पार्टिसिपेटिंग नेशंस. जो कौमें, जो मुल्क इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो उसमें रिमूव करता है बैरियर्स को. ऐसा एग्रीमेंट है जो बैरियर्स को रिमूव करता है, ट्रेड बैरियर्स को इन मुल्कों के दरमियान. बट द अलाउज ईच नेशन टू रिटेन इट्स ओन रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड विद कंट्रीज आउटसाइड द फ्री ट्रेड एरिया. लेकिन हर मुल्क को वो रिस्ट्रिक्ट करता है कि उनके अपनी रिटेन इट्स ओन रिस्ट्रिक्शन, कि अपनी रिस्ट्रिक्शन को कायम करें ऑन ट्रेड विद कंट्रीज, दूसरे मुल्कों के दरमियान ट्रेड आउटसाइड फ्री ट्रेड एरिया. And the customs union, a trading agreement that entails eliminating barriers, जो eliminate करता है barriers को, जो to trade among participating nations, जो participating nations होती हैं, and common barriers to trade with other countries, और common barriers होते हैं दूसरे मुल्कों के दरमियान outside the group, जो ग्रुप से बाहर होते हैं. And the common market, a trading agreement under which members nations remove all barriers, के trading agreement जिसमें members हैं nations के remove करते हैं all barriers को to trading among their group, जो trade करे अपने group के दरमियान. erect common barriers, के common barriers को erect करें to trade with other countries, के दूसरे मुल्कों के साथ trade करें outside the group के. and the permit, और इजाज़त दें unhindered movement of factors or the production within the group, और इजाज़त दें अनहिंडर्ड मूवमेंट के ऑफ द फैक्टर्स की और प्रोडक्शन की विद इन ग्रुप्स के. एंड द इकोनॉमिक यूनियन, ए ट्रेडिंग एग्रीमेंट दैट कमिट्स पार्टिसिपेटिंग नेशन टू रिमूव ऑल बैरियर्स, कि वो कॉमन पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं कि जो रिमूव करते हैं ऑल बैरियर्स को टू ट्रेड अमंग देयर ग्रुप्स, के जिनकी ट्रेड हो रही है ग्रुप्स के दरमियान, टू अबाइड बाय कॉमन रिस्ट्रिक्शन ऑन, पाबंदी करते हैं तो कॉमन रिस्ट्रिक्शन पे countries outside the group. अच्छा, to allow unhindered movement of factors of production within the group, and to closely coordinate all economic policies with other participate, और closely coordinate करते हैं all economic policies को with other participant के साथ. And measuring how much regionalism matter for trade share and trade concentration. Trade share, one nation
nation's flow of international trade as a percentage of a regional या global trade total. ट्रेड शेयर हो गया और ट्रेड कंसंट्रेशन रेशियो क्या है, द सम ऑफ बिलेटरल ट्रेड शेयर्स विद इन रीजनल ट्रेड ब्लॉक डिवाइडिंग बाय द रीजनल शेयर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, ब्लॉक की ट्रेड और डिवाइडेड बाय द वर्ल्ड वर्ल्ड की टोटल ट्रेड, ये है कंसंट्रेशन रेशियो. And the trade concentration ratio or trade concentration ratio less than unity implies that the trading bloc trade less inter intensively within itself, that is trade with the rest of world. ट्रेड कंसंट्रेशन रेशियो लेस, जो ट्रेड कंसंट्रेशन रेशियो लेस होती है देन यूनिटी इम्प्लाइज, यूनिटी के जो मुल्क इकट्ठे हैं उनकी इम्प्लाइज करती है दैट द ट्रेडिंग ब्लॉक, जो ट्रेडिंग ब्लॉक्स होते हैं, दैट ट्रेडिंग ब्लॉक ट्रेड लेस ट्रेड करते हैं इंटेंसिवली जानबूझ के विद इन इटसेल्फ खुद, देन इट्स ट्रेड्स विद द रेस्ट ऑफ द दूसरे मुल्कों की निस्बत. एंड ए ट्रेड कंसंट्रेशन रेशियो ग्रेटर देन यूनिटी, अगर लेस हो, अगर ग्रेटर हो ट्रेड कंसंट्रेशन यूनिटी से, इम्प्लाइज दैट, जो इम्प्लाइज करती है दैट द ट्रेडिंग ब्लॉक ट्रेड मूव इंटेंसली विद इन, कि वो ट्रेड ब्लॉक मूव कर रहा है जानबूझ के विद इन इटसेल्फ, देन इट्स ट्रेड विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, के दूसरे मुल्कों से ट्रेड करने के लिए. The world trade share shows developing nation 35.0%, United States 15.7%, other industrial nation 8.2%, Japan 6.6%, and the European Union 34.5%. Custom union and common market. Custom union and common custom union, a group of countries that agree that treat themselves प्रीफरेंशली इन ट्रेड, के वो ट्रीट ऐसा करेंगे, प्रेफर करेंगे ट्रेड में, एंड कमिट करेंगे देमसेल्फ टू अडॉप्ट करें आइडेंटिकल ट्रेड पॉलिसीज, एक जैसी पॉलिसीज को अडॉप्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू नेशन के लिहाज से आउटसाइड द कस्टम यूनियंस. एंड द ट्रीटी ऑफ द रोम एंड द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957, बेल्जियम, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, लुक्समबर्ग and the Netherlands formed a customs union for free trade among their groups, but imposed common restriction on trade with other countries. And the last one is the assignment. This is your assignment. What are the types of regional trade agreement? Discuss each type. रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट की टाइप्स आपने बतानी है और इस टाइप को डिस्कस करना है. थैंक यू स्टूडेंट फॉर कमिंग टू पोर्टल, सो काइंड ऑफ यू फॉर गिविंग वैल्यूएबल टाइम. अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा.